Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine, safe at home. Students, we have completed first two chapters under Science 2. That is the first chapter, Heredity and Evolution, and the second chapter recently which we completed under Science 2, that was Life Processes in Living Organisms Part 1. Yes, Part 1 हमने complete किया, जिसमें हमने दो life processes study किए. First, respiration and second, cell division. The last video which I uploaded, that was regarding the second type of cell division, that is meiosis. I hope you all have understood both the chapters very well. नहीं कोई टॉपिक समझ में आ रहा है, see the video again. Then too, if you are not able to understand, you can message me your doubt on my personal WhatsApp number or you can call me. Okay, but call me after 7 p.m. because till 7 p.m. I'm busy in uploading my video sessions. Okay, so students, let us start the third chapter of Science 2, that is Life Processes in Living Organism Part 2. Yes, Part 1 में हमने पढ़ा respiration and cell division. Now, in the topic called Life Processes Part 2, we will study one of the important life process of living organism, that is reproduction. What? Reproduction. तो सबसे पहला, what do you mean by reproduction? Point number 1, definition. What is the definition of reproduction? I'll just write it, then I will explain it. It is the process of producing new organism of the same kind. This is very important. Of the same kind from already existing organism. What is reproduction? It is the process of giving birth to new organism of the same kind from already existing organism. ये दो words बहुत important है. For example, when humans give birth to their offsprings, offsprings means children. When humans give birth to their offsprings, are they of the same kind? मतलब humans give birth to human only, cat gives birth to cat only, dog gives birth to dog only. Mango plant के seed से mango plant ही produce होगा. Are you getting that? So giving birth to new organism but of the same kind. समझ में आ रहा है? Cat will not give birth to dogs. Got that? And that too from the already existing organism. मतलब already जो organisms है उनसे ही नई organisms produce होते हैं. क्योंकि prehistoric time में बहुत ऐसे funny theories बताए कुछ scientists ने कि पेड़ के पत्ते हवा में उड़ गए, birds हो गए, पेड़ के पत्ते पानी में गिर गए, fishes बन गए. ऐसे कुछ तो silly theories are told in the past. Okay, but scientifically it is proven that new organism can take birth only from the already existing organism. और वो जो new organism produce होगा, it will be of the same kind. So this is called reproduction. समझे? Then point number 2, what is the significance of reproduction? Significance means what is the importance of the reproduction? क्यों करना है reproduction? नहीं किया तो क्या मरने वाले? नहीं, but species will get wiped off, right? जैसे कि सारे humans ने, we human is one species. हमने species मतलब group of similar organisms which can reproduce to produce new organisms of the same kind. ये already first chapter में पढ़ा है. What is species? Group of same organism. जैसे human एक species है, dog एक दूसरा species है, mango एक तीसरा species है, right? तो reproduction process is necessary for continuation of species. मतलब अगर सारे humans ने decide किया, all humans on the planet Earth if decide that they will not reproduce, they will not give birth to new children, what will happen? कभी ना कभी जितने भी existing humans है, they want to die, फिर वो species ही खत्म हो जाएगा. तो species continue रखने के लिए the process of reproduction is very very important. Second significance,
reproduction is useful to produce variation. वेरिएशन मतलब आने वाले ऑर्गेनिजम्स भले ही पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे, वो पेरेंट्स के जैसे होंगे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ तो जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से आने वाली स्पीशीज में वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. जैसे हमारे एंसेस्टर्स कौन थे? एप्स, मंकी लाइक एनिमल्स. उससे धीरे 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 हमारे जैसे एनिमल्स प्रोड्यूस हो गए. किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से. सो देयर आर टू मेन सिग्निफिकेंस, टू मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन टू कंटिन्यू अ स्पीशीज एंड टू प्रोड्यूस वेरिएशन. वेरिएशन आने वाली जनरेशन में, वेरिएशन मतलब उनमें कुछ बॉडीली चेंजेस होना जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव वेरिएशन इन द कमिंग जनरेशंस? क्योंकि एनवायरमेंट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल. अभी देखो कोरोना वायरस छोटा सा दिख भी नहीं रहा है, लेकिन सबको घर में बिठा के बैठा है. आर यू गेटिंग दैट? एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो वो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ हमारी बॉडी एडजस्ट करनी चाहिए, हमारी बॉडी अडेप्ट होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी बॉडी में कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होना जरूरी है. देखो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दे ऑलवेज लाइक टू लिव इन अ विलेज एरिया. मोस्टली दे से दैट अरे बाबा हमको नहीं वो सिटी में एडजस्ट कर पाते, क्योंकि उनके जीन्स और हमारे जीन्स, उनके डीएनए और हमारे डीएनए सेम है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है. हमारे डीएनए में कुछ वेरिएशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं. कोरोना पैंडेमिक का भी वही है. जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा अडेप्टेड है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस से, वही सरवाइव करेंगे. जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, दे विल मे सफर द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना. समझ में आया? सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज रिप्रोडक्शन. In this chapter we are going to study. So point number 1 we studied definition, and point number 2 we studied significance of reproduction. Point number 3, there are two types of reproduction, or it is also called as two modes of reproduction. Reproduction is done in two types or in two ways. First, asexual reproduction. And second, sexual reproduction. Okay, so in this chapter we are going to study first asexual reproduction, जिसके भी वापस सब टाइप्स है. Getting that? And then we will study sexual reproduction in plants and sexual reproduction in animals, that is in humans. समझे? तो let us start. सबसे पहला, what is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction? Let us study that. So I hope students definition अच्छे से समझ में आया होगा रिप्रोडक्शन का, साथ में उसका सिग्निफिकेंस भी. Now we will talk about two modes of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction. अब यहाँ पे पहले हमने जो माइटोसिस मियोसिस पढ़ा ना, वो यहाँ पे कैसे यूजफुल होगा वो देखो. सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction is a uniparental process. What do you mean by uni? Single parent. मतलब यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, ओनली वन पेरेंट. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा, ये है पेरेंट अमीबा सेल हैविंग इट्स न्यूक्लियस. जब पेरेंट अमीबा अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिलता है, इट इज एक्वाटिक एनिमल, फ्रॉम द वाटर इट गेट्स द न्यूट्रिशन एंड देन इट ग्रोज वेल. एंड जैसे ये अच्छे से ग्रो हो गया, प्रॉपरली मैच्योर हो गया, इट डिवाइड्स माइटोटिकली. हाउ इट डिवाइड्स? सी हियर. सबसे पहला तो क्या डिवाइड होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियस डिवाइड होगा. इज द न्यूक्लियस डिवाइडिंग हियर? फिर उसका क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म. एंड फ्रॉम विच विल गेट टू डॉटर अमीबुली. डोंट से अमीबाज,
अमीबाज नहीं होता इसका प्लूरल, इसका प्लूरल होता है अमीबुई। गॉट दैट? तो यहाँ पे बोलो मुझे, इट इज अ सिंगल पेरेंट विच इज प्रोड्यूसिंग 2 न्यू डॉटर सेल्स। अब अगेन एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इट इज कॉल्ड डॉटर अमीबा ओनली, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज सन अमीबा। यहाँ पे जेंडर नहीं मैटर करता। आर यू गेटिंग दैट? ये मेल फीमेल है इसलिए नाम नहीं दिया है। डॉटर बोलने के लिए एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि मोस्टली फीमेल जो जेंडर है उनमें एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की मतलब दे गिव बर्थ टू द चाइल्ड। सन दैट इज मेल डोंट गिव बर्थ टू द चाइल्ड, इसलिए ये वर्ड यूज किया, क्योंकि ये डॉटर अमीबा वापस जब ग्रो होगा ये और 2 नए अमीबा प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? इसलिए वर्ड यूज किया है डॉटर, नॉट द सन। ओके, अब I hope you understood that is a uniparental process, only single parent is involved। and ये भी कौन से टाइप का सेल डिवीजन होगा? ये माइटोसिस के मियोसिस? करेक्ट, माइटोसिस। यहाँ पे अमीबा के नंबर ऑफ डीएनए पहले डबल होंगे, फिर वो 2 नए सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिससे 2 न्यू डॉटर अमीबा सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायपेरेंटल प्रोसेस, मतलब वहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। पेरेंट्स मतलब 2 अलग अलग सेक्स इन्वॉल्व है, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। इट इज अ बायपेरेंटल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स फीमेल सेक्स that we call mother and a male sex that we call father। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये चैप्टर में हम हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अभी दैट मेल बॉडी के, फीमेल बॉडी के। सो वन थिंग आई ऑब्जर्व, अब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर गोइंग टू वॉच द वीडियो। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, दे फील शाय, दे फील गिल्टी व्हेन आई एम टीचिंग द टॉपिक। नीचे देख रहे, ऊपर देख रहे, मतलब कुछ तो हेजिटेट करते हैं। वाई? जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, डू वी फील शाय और गिल्टी और हेजिटेटेड? नो। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक साइंस है, एक स्टडी मटेरियल है। टेक इट इन दैट वे। यहाँ पे कुछ गलत मत लाओ तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट फील शाय। आर यू गेटिंग दैट? ऐसे कुछ गंदा दिमाग में भी आ रहा है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो शाय फील करते हैं एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु अननेसेसरी लाव और ब्रिंग समथिंग डर्टी इन देयर माइंड। सो जब ऐसा हो रहा है तो अपने मम्मी पापा के चेहरा सामने लाओ, स्पेशली योर मदर्स फेस। सच डर्टी थिंग्स विल नॉट कम इन योर माइंड। टेक इट एज अ स्टडी मटेरियल ओनली। आर यू गेटिंग दैट? ओके, सो हियर फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। स्पेशल एक, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक और स्पेशल सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आफ्टर पर्टिकुलर एज स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग सेल्स। मेल की बॉडी प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म सेल्स। अब एक और स्टूडेंट है, मैंने यहाँ पे बोला ये जो 2 सेल्स है, दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर पर्टिकुलर एज। जैसे कि फीमेल्स में, आई राइट हियर ओनली, फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स ये एग सेल प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। मेल में आफ्टर द एज ऑफ 14 to 16 ईयर्स ये सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। वो एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। जब हम 12 साल के हो जाते हैं या 14 साल के हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होती है, तब तक वो इनएक्टिव होते हैं। हम जैसे ही पैदा होता है बाकी सारे सिस्टम्स अपना फंक्शन शुरू करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम है सब अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तब कंप्लीटली तैयार नहीं होता अपना काम करने के लिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्यूबर्टी के बाद ही अपना काम शुरू करता है। प्यूबर्टी मीन्स दिस पर्टिकुलर एज। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, वेरी गुड, आई थिंक ही इज स्टडिंग इन वेरी मच डिटेल, शायद आईआईटी वगैरह क्लासेस को जा रहा होगा। उसने ये डाउट पूछा, फीमेल बॉडी में ऑलरेडी जब बेबी गर्ल पैदा होता है, आई एम टेलिंग अगेन, जब बेबी गर्ल पैदा होता है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी एग सेल प्रोड्यूस्ड होते हैं, बट उसका आंसर है ये एग सेल तब इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर मतलब थोड़े ही तैयार होते हैं। आर यू गेटिंग दैट? जब प्यूबर्टी आती है गर्ल्स में, मतलब 12 या 14 साल के बाद, फिर हर महीने में एक एग मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब कंप्लीटली ग्रो होता है। आई होप यू गॉट योर आंसर। वैसे मेल में नहीं होता। जब बेबी बॉय पैदा होता है तो उसकी बॉडी में स्पर्म्स तैयार नहीं होते,
बॉयज में ये एज के बाद ही स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली उनकी बॉडी में एग्स तैयार होते हैं, लेकिन वो एग्स क्या होते हैं? इमेच्योर। इमेच्योर मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं होते, थोड़े ही तैयार होते हैं। समझे? ओके। अब ये एक एग सेल और ये एक स्पर्म सेल जब फ्यूज होगा उससे एक नया सेल बनेगा, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। दैट मीन्स वी हैव टेकन बर्थ इन द फॉर्म ऑफ वन न्यू सेल। फिर ये सेल जो जाइगोट है ये डिवाइड होकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर हमारी पूरी बॉडी तैयार होगी, जिसमें 9 महीने लगते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड ये जो स्पेशल सेल्स है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर कॉल्ड, हमने पढ़ा है, जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स और गैमेटिक सेल्स, क्योंकि एग एंड स्पर्म को गैमेट्स बोलते हैं। समझे? इधर ऐसा कुछ इन्वॉल्व है क्या? कुछ भी नहीं। गॉट दैट? सो इधर एग एंड स्पर्म फ्यूज होके क्या बनता है? जाइगोट। दैट मीन्स वी टेक बर्थ। इधर ऐसा कुछ है क्या? इधर डायरेक्ट पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है, 2 नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो गए। ऑफस्प्रिंग मीन्स चिल्ड्रन। सो लेट अस स्टडी द रिमेनिंग डिफरेंस बिटवीन दीज। अब अगर ये पॉइंट समझा होगा तो बाकी के पॉइंट ऑफ डिफरेंस इजीली समझ में आएंगे। तो सेकेंड पॉइंट बोलो, कौन सा रिप्रोडक्शन फास्ट होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल? ऑब्वियसली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रैपिड प्रोसेस, फास्ट है। पेरेंट बॉडी ग्रो हो गया, डिवाइड हो गया, 2 नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस। इधर वैसा है क्या? नहीं। पहले पेरेंट ग्रो होंगे, फिर उनकी बॉडी में से वो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, एग एंड स्पर्म, फिर वो फ्यूज होके जाइगोट बनेगा, फिर वो जाइगोट टाइम लेगा पूरा ग्रो होने के लिए, फिर वो बेबी पैदा होगा। समझे? सो इट इज अ स्लो प्रोसेस। Okay. Third, here the offsprings produced. Offsprings means childrens. The offsprings produced are identical to their parents. Same parents के जैसे होते हैं genetic material. क्यों? क्योंकि ये produce होते हैं. Here it involves the process called mitosis. Mitosis में क्या होता है? Parent cell के already जितने chromosomes है वो double हो जाते हैं, duplicate हो जाते हैं, and then what? Daughter cells में divide होते हैं. तो सेम क्रोमोसोम्स आर गोइंग फर्दर विदाउट एनी चेंज। बट यहां पे ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के जैसे है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। पेरेंट्स के जैसे 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, व्हाटएवर। बट यहां पे हमने पढ़ा एक एग सेल होता है और एक स्पर्म सेल। ये 2 सेल्स कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस। एंड मियोसिस में हमने पढ़ा है, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, थर्ड स्टेज पैचेटिन में क्रोमोसोम के थोड़े डीएनए एक्सचेंज होते हैं, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। एग सेल एंड स्पर्म सेल पेरेंट सेल से थोड़े अलग डीएनए कैरी करते हैं, फिर एक्सचेंज ऑफ डीएनए की वजह से। समझे? तो आने वाले किड्स जो है, देखो, हाफ क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम मदर बॉडी, हाफ क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम फादर बॉडी। नया क्रोमोसोम बनेगा, सेट बनेगा, एंड उससे जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो सिमिलर तो होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। देखो, जैसे कि हमारी हाइट शायद पापा जैसी होती है, स्किन कलर मम्मी जैसा होता है, नोज शेप शायद मम्मी जैसा है, आई शेप शायद पापा जैसा है। सो सम कैरेक्टर्स वी शो फ्रॉम फादर्स बॉडी एंड सम फ्रॉम मदर्स बॉडी। सो वी शो वेरिएशन, वी आर नॉट आइडेंटिकल टू देम। समझे? सो द नेक्स्ट पॉइंट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। In asexual reproduction, mitosis takes place, but in sexual reproduction, meiosis takes place to produce gametes. Egg and sperm produce करने के लिए gametes produce करने के लिए meiosis होता है, but जब zygote बन जाता है, what is zygote? When one egg and one sperm fuses to form a new cell, that is V. zygote तैयार होता है, फिर वो zygote divide होता है by the process of mitosis to produce more number of cells, tissues and organs. So sexual reproduction involves mitosis as well as meiosis, but asexual reproduction involves only mitosis. Okay. Next point of difference. In case of asexual reproduction, if you see here, fertilization. What is fertilization? The process of fusion of egg and sperm. जब एग एंड स्पर्म फ्यूज होते हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. सो इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
fertilization and zygote formation does not take place. Whereas here directly we'll write fertilization and zygote formation takes place. समझे students? So this is all about sexual reproduction and asexual reproduction. Last point. तो यहाँ पे जब asexual reproduction होता है गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं क्या, जैसे कि एग्स स्पर्म ऐसा कुछ इन्वॉल्व है? नो. यहाँ पे डायरेक्ट बॉडी मतलब बॉडी सेल्स इन्वॉल्व है. सो asexual reproduction में सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व, मतलब डायरेक्टली बॉडी डिवाइड होता है. In sexual reproduction, gametic cells are involved. You can say gametic cells or sex cells or germ cells are involved. तीनों words का meaning same. What are gametic cells? Egg and sperm. So students, here we completed the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. तो हमने ये चैप्टर में पहला पॉइंट क्या पढ़ा? What is reproduction? What is its significance and what are its two types? सारे notes मिलेंगे. Just give me 1 or 2 days. After that, I will send you the notes. Don't copy from the video. I will send you the PDF of notes. Then you copy it in your notebook. I hope पहले 2 चैप्टर का नोट्स तुमने कंप्लीट कर दिया होगा. ओके. अब asexual reproduction सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये जो मैंने अभी डिफरेंस बिटवीन बताया, इट कैन कम इन बोर्ड एग्जाम और इन योर स्कूल एग्जाम और इन अ ट्यूशन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स. इससे पहले वीडियो में जब मियोसिस खत्म हुआ तब मैंने माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस भी बताया. ओके. दोनों में से कोई भी एक डिफरेंस डेफिनेटली स्कूल एग्जाम में आता ही है एंड बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी है. नाउ वी विल स्टडी मोड्स ऑफ asexual reproduction. मतलब asexual reproduction के भी टाइप्स, मोड्स मतलब टाइप्स है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी मोड्स ऑफ asexual reproduction in unicellular organisms, and then we will study modes of asexual reproduction in unicellular organ, then in multicellular organisms. अलग अलग टाइप्स से होता है, मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है लेकिन अलग अलग मेथड से asexual reproduction होता है. So in unicellular organisms there are 3 modes of asexual reproduction. मैं टाइप्स लिखती हूँ. बाइनरी फिशन, budding, second is multiple fission, and third is budding. Okay. In multicellular organisms, the asexual reproduction takes place in 6 ways. Yes. First, fragmentation. Regeneration, budding, spore formation, cloning, and vegetative propagation. तो टोटल asexual reproduction के कितने टाइप्स पढ़ने हैं हमको? 8. 3 in unicellular organisms and 6 in multicellular organisms. Are you getting that? जब तुमको मैं नोट्स भेजूंगी, नोट्स में मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन, फिर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड asexual reproduction एंड देन asexual reproduction का ये चार्ट अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स भी दिया है. ओके. बट बहुत इजी है. डोंट बी स्केर्ड कि इतना सब कैसे लर्न होगा. स्टूडेंट्स ये चैप्टर तो सबसे इजी है लर्न करने के लिए क्योंकि तुमको सिर्फ डायग्राम्स याद रखने हैं. क्या याद रखने हैं? डायग्राम्स. जैसे जैसे मैं एक एक पढ़ाऊंगी दैट टाइम विल अंडरस्टैंड कि कितना इजी है. ओके.
चलो आई स्टार्ट विद द बडिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इजी द चैप्टर इज. बडिंग is a type of asexual reproduction performed by the unicellular organism like yeast. हमने 9th में यूजफुल ऑर्गेनिज्म यीस्ट पढ़ा है ना. मैं ये वाला पार्ट इरेज करती हूँ क्योंकि ये आज तो होगा नहीं कंप्लीट. इन टुमारोज लेक्चर विल गो थ्रू इट. सो सबसे पहले आई विल टीच यू द मेथड ऑफ asexual reproduction, that is budding in yeast. We know yeast is a unicellular organism, so this is the single cell of the yeast. When the yeast cell is well fed, देखो रिप्रोडक्शन करना ये भी एक बॉडी का फंक्शन है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. एनर्जी चाहिए तो खाना पीना भरपूर चाहिए, समझे. तो when the parent yeast cell is well fed and is completely matured, matured मतलब completely grow हो चुका है, then it develops a small outgrowth on its cell surface. That small outgrowth on its cell surface is called bud. Then the nucleus begins to divide. Can you see here? Nucleus begins to divide. When the nuclear division gets completed, is it mitosis? पहले nucleus divide होगा. Okay. जैसे nuclear divide हो गया, दो daughter nuclei produce हो गए. One of the daughter nuclei migrates into the bud. Migrates means moves into the bud. It will look like this then. One nucleus here and one here. Okay. Then this bud cell will get detached from the parent cell and will live as a new yeast cell. It will be well fed and it will grow into a new yeast cell. समझे? That is budding by forming a small bud, that is outgrowth on its surface. Okay. Now this budding can be multiple buds also. Like this. मतलब पहले पेरेंट सेल का डिवाइड होगा, माइग्रेट होगा, इमीडिएटली ये बर्ड डिटैच होने से पहले ही ये एक दूसरा बर्ड ग्रो करेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक इधर डिवाइड. सो इट कैन बी सिंगल बडिंग और इट कैन बी मल्टीपल बडिंग ऑल्सो. समझे स्टूडेंट्स? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction in unicellular organism, that is budding. I hope you understood. Okay. अब जो बचे हुए पार्ट्स है, बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन, everything that we will complete in the tomorrow's lecture. So soon I will try to post you the PDF of the notes of this chapter. So students, what we studied today in the beginning, what is reproduction? The process of giving birth to new organism of the same kind from the already existing organisms. Then you studied its significance. Main thing, difference between asexual reproduction and sexual reproduction. Then, as I told you, first we have started studying asexual reproduction, जिसके total 8 types है. 3 in unicellular organisms and 6 in will be multicellular organisms. जिसमें का हमारा पहला topic in unicellular organisms budding वाला part हमारा complete हो गया. How you will write the notes? मैं PDF तो भेजूंगी, but one more thing, ये पूरा चैप्टर डायग्राम पे डिपेंड है. किस पे डिपेंड है? डायग्राम्स पे. तो डोंट डू द मिस्टेक. डायग्राम शुड बी ड्रॉन विथ पेंसिल ओनली. अगेन आई रिपीट, डायग्राम शुड बी ड्रॉन विथ पेंसिल ओनली. कुछ बच्चों को आदत है डायग्राम पेंसिल से निकाल के उसको शेडिंग वगैरह भी करते हैं. शेडिंग भी अलाउड नहीं है डायग्राम्स को, बोर्ड एग्जाम में याद रखो. या उसको ब्लैक पेन से बॉर्डर करते हैं, या डायग्राम पेंसिल से निकालते हैं, लेबलिंग पेन से करते हैं. इट्स नॉट अलाउड एट ऑल. एवरीवेयर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, नीचे डायग्राम का नाम लिखने के लिए, इधर नाम क्या लिखोगे? बडिंग इन यीस्ट. समझे? एवरीथिंग शुड बी डन विथ पेंसिल ओनली. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.